the last menstrual period, and I'll check that whether she's sure of dates or not. Then I will ask her whether she had regular antenatal visits. She had नहीं, आपका अंदाज गलत है, आपका अंदाज जो आप ये whether she sure of dates, whether she had this, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते. आप पहली हिस्ट्री ले रही है. I like to know her LMP, gestation period, जो सीधे सीधे सवाल है. जी सर, ठीक है. उस तरह से बोलना है. ये नहीं क्या whether she unsure of dates. तो एक नवा इशू आप पे पा लेता है unsure of dates. जी सर, ठीक है. ये एग्जामिनर ए नेगेटिव को भूल के unsure of dates की तरफ चल पड़ेगा. ठीक है सर, ठीक है सर. ऐसे नहीं करते. न्यू इश्यूज आपको जो इशू बता दिया गया है कि प्राइमरी ग्रेविड 24 वीक्स पे चाय 59. Sir, I'll ask her last menstrual period, and then I'll count the gestational age from that. I'll ask her whether she was regular in her antenatal visits, she took folic acid or not, whether she had her. क्या करती हो, क्या करती हो. बिल्कुल बिल्कुल फेल फेल फेल. जी सर. ऐसा नहीं करते जो आप रूटीन में करते हो बाबा, वो पूछो. सर हम पहले इसकी करंट हिस्ट्री. तुम तो इधर उधर भागी फिर रही हो, दाएं बाएं नहीं. कि जो इंफॉर्मेशन दे दी, पेशेंट एज 20, प्राइमरी ग्रेविडा एंड 24 वीक्स पे ए नेगेटिव है. आपने जो सीधे सीधे सवाल पूछने हैं वो पूछो 1 मिनट में, 2 मिनट में. तुम्हारे पास 7 मिनट टोटल है इसको आखिर तक पहुंचाने के लिए. तो मैं बोलता हूँ, I'll give you kind of lead. In this patient, I'll like to know her LMP and whether menses were regular or not. वो बड़ी important बात है to calculate. LMP and whether menses were regular or not, and then calculate expected date of delivery. जी sir. And how long she has been married, and whether this is her first pregnancy. मैंने कहा बोला primary gravid, they can confirm. But whether this is her first pregnancy or previous pregnancies were there. Then third, did she have any blood transfusion in her lifetime up till now? Yeah, relevant question. And then did she have any investigation up till now other than blood group? Yes, sir. I'm not naming investigation, not wasting my time. उसके बाद any medical history, any surgical, बस full stop. फिर मैं एग्जामिन करूंगी, फिर ये टेस्ट ऑर्डर करूंगी. ठीक है सर. तो सर ये जो प्लान प्रेगनेंसी है, टाइम करता हूँ दोबारा. 9:40 हुए, बोलिए. यही से शुरू करते हैं. भी मैं कहता हूँ ना, वक्त इतना लंबा लग जाता है, 2 टॉपिक कवर करना मुश्किल हो जाता है. फिर से age 20 gravida, 24 week gestation, comes to you in the antenatal clinic. Her blood group is A negative. How will you manage this patient? Sir, after my introduction and introduction of the patient and confirming the identity of the patient, I'll ask the last menstrual date of the last menstrual period of the patient, and I'll ask her whether she had regular cycles throughout her life previously or not, whether this is her first marriage, and what is how long she has been married, whether she has been any previous blood transfusions or any organ transplant or any other transfusion in the life before, whether she this is her first pregnancy or she has any miscarriage or ectopic pregnancy before, and up till now she had regular antenatal visits, and what is the blood group of her husband. I will confirm the blood group of her husband. If she does not know the blood group, then I'll ask this in the investigations, and I will ask her whether this pregnancy has been progressing normally at any investigation in this pregnancy, like any CVS amniocentesis, or whether she have any invasive test done in this pregnancy or any blood transfusion in this pregnancy till now, and after that I'll go for the investigation. Good. ये होना चाहिए. जी सर. And rule out any medical surgical passes. Sir. I'll rule out previous any known allergies, any family history of diabetes, asthma, tuberculosis, hypertension, and I'll नाम लेने की जरूरत नहीं. Any medical history. Okay, we are focusing on RH1. ठीक है Any history or surgery. चलो.
Okay, sir. After that, I will go for the investigation of the patient. Apart from the baseline investigations, I will go for the husband blood group. And if she confirms it to be negative, then no further investigation will be needed. But if it is positive, then I'll go for further investigations, which will include, in this pregnancy, I will counsel that my patient can be at risk of, at this step, I will counsel. एक मिनट, husband की further investigation का नाम लो, genotyping. Okay, sir. I will do the genotyping of the husband, but in our setup, there can be paternity issues. But still, before that, I can offer her cell-free fetal DNA, which is the latest technique, and I will confirm the genotype of the baby in the during antenatal period, which can be confirmed after 16 weeks of gestation. But if the facilities are available, I will go first for the cell-free fetal DNA. But if it's not available, then I go for the paternal genotype, which is there can be which is not a very well appreciated test because of the issues with the paternity. But this is the second option which I have, and I will tell the pros and cons of this test, and I will confirm the genotype of the patient. If it come out to be homozygous, then I will counsel it will help in the counseling of the patient that that all the pregnancies, future pregnancies of the patient are at risk of RH incompatibility. And if he is found to be heterozygous. नहीं, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर वो होमोजाइगस है तो फिर वो तो है ही होमोजाइगस, RH नेगेटिव जो हुई। नहीं सर, अगर हस्बैंड पॉजिटिव है अगर, तो सर फिर वो अगर होमोजाइगस है या होमोजाइगस, फिर कहोगे कि ऑल द फ्यूचर बेबीज विल बी पॉजिटिव एट रिस्क। जी सर, हस्बैंड का कहो, ठीक हो गया। जी सर। और अगर वो हस्बैंड हेट्रोजाइगस है सर, तो फिर देयर इज 50-50 चांस, तो उसमें फिर आई विल काउंसिल दैट। हो गया, आगे चलो आगे। सर, and after that, if it's in this pregnancy now, as she is primary gravida, the risk to this baby is less, because in this pregnancy, I can offer her वो prophylaxis of the prophylaxis of आपने इस पेशेंट के एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया, इनडायरेक्ट टेस्ट? जी सर, सॉरी सर, मैं भूल गई सर। भूल गई मतलब मौलवी के बगैर निकाह हो गया? नहीं सर, वो बोलना था सर, मैंने हस्बैंड की तरफ चली गई ना। हाँ जी सर, वही बोलना था। तो यही तो है ना, यही तो है। हस्बैंड का तूने पता नहीं जीनोटाइपिंग कहाँ तक पहुंचा दी। जी सर। सिर्फ जीनोटाइपिंग ही कह देती तो काफी था। जी सर। फर्दर पूछती कि लेटेस्ट मेथड जीनोटाइपिंग का क्या है, फिर आप बोलती। फोकस ऑन टू द पेशेंट, पेशेंट। जी सर। चलें, सर मैं मैटरनल एंटीबॉडीज टाइटर कराऊंगी, उसके बाद उसके बाद बोलो ना कि अगर वो नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, इफ इट इज पॉजिटिव, आई लाइक टू नो द टीचर। जी सर। सर इनडायरेक्ट कूम टेस्ट तो कहते हैं अब नहीं अब डायरेक्ट एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं। कोई जो भी करवाना है करवाओ ना फिर। जी सर। सर I'll go for the antibody titers of the mother, and I will I will check whether they are less than 4 or more than 4. If they are less than 4, then there is less risk of developing a fetal anemia and head drops in the baby, and I'll keep on monitoring the maternal antibodies 4 weekly till 28 weeks, and then 2 weekly till term. And if the ratios kept on being less than 4, then I'll keep her on conservative management, and I'll keep the I'll try to take the pregnancy as close to term as possible if there is no fetal compromise. And I'll also keep on monitoring the fetus with the ultrasound. At 20 to 24 weeks ultrasound, I will check for the polyhydramnios or hydrops or fetal scale edema as well. Although chances are low, but still I'll go monitor the fetal ultrasound and the antibody titers of the mother. And after that, if everything remains stable, I'll deliver my patient at between 37 and 38 weeks of no sir, at 28 weeks and 32 weeks of gestation, I'll give her anti-D immunoprophylaxis. देखा अब तुमने खुद ही डायग्नोसिस बनाया, तुम तो फेल हो गई थी 38 वीक्स पे उसको डिलीवर करके। नहीं सर, हाँ जी सर। उसका प्रोफाइलैक्सिस तुमने जिक्र ही ना किया। सर मुझे याद आ गया फिर। भाई याद इस तरह नहीं ना, बाद में टेबल से उठ के बाहर जाके बाबे का क्वेश्चन याद आया, वो तो फिर कोई याद ना है। जी सर। पढ़ के आई हो तुम, नहीं मैं समझ गया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि you lose focus
आप दाएं चली तो जीनोटाइपिंग पता नहीं कितने कितने 50, बाएं चली तो वो उसको डिलीवर कर दिया 38, और एंटीबॉडी का टेस्ट तो मैंने आपको बताया, और फिर एंटीबॉडी का टेस्ट कर भी लिया, तो उसका प्रोफिलैक्सिस देना है नहीं देना, क्या करना है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है, उसका जिक्र जी नहीं है, तो फिर आप कैसे पास हो जाएंगे? जी सर। नहीं, तुम आदत बनाओ, तुम्हारी मैं आदत समझ गया हूँ, अपनी बेटी को चुप करो। तो नहीं सर, ये मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा चलो, जिसका भी है वो माइक बंद कर ले प्लीज। चलो, मैं आई एम सॉरी फॉर अदर गर्ल्स, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन सीनियर पे वापस जाता हूँ। जी सर। रिमेन फोकस ऑन द पेशेंट, उसके खामद का टेस्ट, ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, फुल स्टॉप। लेट एग्जामिनर आस्क यू, तो फिर रिमेन फोकस, उसका फोकस, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है, जी सर। और उसको फिर लेके जाओ 38 वीक्स पे या जहां पे भी लेके जाओ, जी क्योंकि इस पेशेंट में हमने कॉर्ड ब्लड लेके उसके चारों पांचों टेस्ट देके फिर आपको घंटी से पहले पहले आपने यहाँ पहुंचाना है, फिर आप पास होगी, वरना नहीं होगी। जी सर। चलो मैं टाइम करता हूँ फिर। पेशेंट एज 20, प्राइमरी at 24 weeks comes to the antenatal clinic. Her blood group is A negative. How will you जी सर। manage? Sir, after confirming the identity of the patient and my introduction to the patient, I'll confirm the last menstrual period of the patient and whether the cycle were regular or not. Whether I'll calculate the gestational age of the patient and I'll calculate the LMP of the EDD of the patient. And after that, I'll ask her how long she has been married, whether it's for first pregnancy or second pregnancy, if, whether she has been previously has any pregnancy previously or not, whether any miscarriages or ectopic. And up till now, she had regular antenatal visits, she has booked somewhere or not, and she had been regular with the visits. And then after, I'll also ask whether she has previously any blood transfusion in pregnancy or before अगर pregnancy. आपने एक मिनट, अगर आपने जिक्र ही किया है कि यहाँ से पहले कहीं एंटीनेटल करवाया, because she is 24 weeks, ये सवाल फोकस कर लिए, did she have ultrasound at 12 weeks and 20 weeks? जी सर, ओके सर। ये रेलेवेंट है, हाँ आप जी सर। एग्जामिनर को बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। जी सर। चलो, Ji sir. And sir, then I'll ask whether she previously had any blood transfusions or in this pregnancy or outside pregnancy, or whether she has any invasive test in this pregnancy, any serious any invasive test in this pregnancy. And after that, I will ask her the blood group of the husband. If she is confirmed about the blood group of the husband that it's negative, then no further investigation is required. But if एक मिनट, अरे आई एम सॉरी, हस्बैंड के टेस्ट तो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे ना, उससे जी पहले रेफरेंस टू मेडिकल और सर्जिकल डिजीजेस और पास्ट हिस्ट्री, कुछ इस तरह से बोल दीजिए हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। जी वो सर, उसमें अभी सर मैं जी सर बिल्कुल तो हिस्ट्री में हस्बैंड का हस्बैंड का टेस्ट तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जी सर। जी सर, ठीक। उससे पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिर टेस्टों में आना है। जी सर। I'll ask her whether her previous surgical and medical history, her personal history, and history of known drug allergies, or her socioeconomic history. And after that, I will like to examine the patient, and I will, after having her examination of vitals and her respiratory, cardiovascular system examination, breast and thyroid, I will do her per abdominal examination, and I'll palpate the symphysiofundal height and look for the and measure the symphysiofundal height and chart it. And after that, I will go for the investigations of the patient in हाँ, investigation. ये ठीक है, अब ठीक है, ठीक। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सोनिकेट से फीटल हार्ट भी सुन लूंगी। चलो, Ji sir. हाँ, After that, I'll go for the investigation of my patient. Apart from the baseline investigations, I will ask the ultrasound of the if available 12 and 20 weeks ultrasound report of the patient, and after that, I'll ask the blood group of the husband of the patient, and my further investigation will depend on the blood group of the husband of the patient, and the if and its results, it comes out to be negative, then no further investigation required. And but it if it
comes out to be positive, then I will go for the antibody titers of the mother. No, I can Is also offer. genotyping and then I can also, sir, I can also offer genotyping of the husband, and if it's come and then I'll offer the antibody monitoring of the antibody titer of the mother. So ठीक है? अब ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, very good. Now you learn to remain सर focused एक on. क्वेश्चन है, पूछ लूं? जी जरूर पूछिए. सर ये पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा है और इसके कोई अगर रिस्क फैक्टर नहीं है कि कोई इसको ट्रॉमा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जो हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स इसके रूल आउट किए, तो सर फिर भी हम इसके एंटीबॉडी टाइटर्स करवाएंगे रूटीन एंटीबॉडी प्रोफिलैक्सिस देने से पहले? ये तो लाजम, ठीक है सर. बिकॉज इट इज ए सिंपल टेस्ट, एंड अगर वो जैसा अभी डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है, मुन्नज़ा ने बोला कि अगर वो नेगेटिव है फिर नो प्रॉब्लम, फिर आप इस तरह रीएश्योर कर सकते हो पेशेंट. चले ठीक है सर. अब वापस आते हैं. हाँ जी, फिर सर उसके बाद मैं सर उसके एंटीबॉडी टाइटर्स कराऊंगी. इफ इट कम आउट टू बी लेस देन 4 इंटरनेशनल यूनिट. नेगेटिव बोलो पहले. नेगेटिव अगर नेगेटिव है, एंटीबॉडी टाइटर नेगेटिव है सर जी. सर अगर एंटीबॉडी नेगेटिव है, if there is no antibody in the maternal blood, then I'll go for the after monitoring of the serial monitoring till 28 weeks, I will go for the antenatal D prophylaxis to the patient at 28 weeks after confirming that she is non-sensitized. यहाँ पे I will reassure the patient. अगर वो नेगेटिव है, यहाँ पे लफ्ज़ reassure हो. Reassure the patient, and I will confirming that she is non-sensitized, I will give her anti-D prophylaxis at 28 weeks and then again at 34 weeks. After telling my patient about the details of the benefits of this injection, ठीक हो गया. फिर उसके एंटीबॉडी टेस्ट रिपीट करोगी, और इफ प्रेगनेंसी इज नॉर्मल रूटीन नो कॉम्प्लिकेशन, फिर उसको कब डिलीवर करोगे? 37 से 38 वीक के बीच में सर मैं उसको डिलीवर करा दूंगी. एंड उसको डिलीवरी के टाइम पे सर मैं उसको जी सर डिलीवरी के टाइम पे मैं उसकी मॉनिटरिंग करूंगी, कॉन्टिन्यूअस लेबर उसको मॉनिटर करूंगी. माय प्रेफरेंस उसको यहाँ पे लेबर की मॉनिटरिंग नहीं रिक्वायर्ड, नॉर्मल इंडक्शन डिलीवरी, और फिर डिलीवरी के फौरन बाद क्या करो? मैं कॉर्ड ब्लड को सेव करूंगी और सर मैं डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट कराऊंगी ऑन द कॉर्ड ब्लड. आल्सो आई विल चेक फॉर द बिलिरुबिन एंड द हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट ऑफ द बेबी. एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेज का रेफर करना जरूरी हो गया कि एक्टिवली. Yes, I will actively manage the third stage of labor, and मैं in वो minimal handling of the placenta, and I'll एक कॉर्ड ब्लड के क्या टेस्ट करो? सर कॉर्ड ब्लड में सबसे पहले तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे सर, बिलिरुबिन चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, हेमाटोक्रिट चेक करेंगे, और ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी चेक करेंगे, उसका RH स्टेटस बेबी का चेक करेंगे. और तुम अपना वक्त चेक करेंगे 4 दफा चेक करेंगे. कहा I'll check एक दफा हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, कूम्स टेस्ट, और क्या ये 4 टेस्ट ही होते हैं. तो बस खत्म हो गया. तुम्हारे 7 मिनट में सारा कह दिया तुमने. जी सर. इस तरह पास हो. एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, हमने कोई हाई टेक चीज नहीं डाली. जी सर बिल्कुल. तो फोकस ऑन टू द पेशेंट. जी सदफ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर पेशेंट नेगेटिव है, शी इज पीजी और उसका कोई मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, उसका टाइटर्स भी नेगेटिव है, तो फिर क्यों हम उसको मतलब 28 वीक तक इसको, मतलब शी इज प्राइमरी ग्रेविड एंड हर टाइटर आर 0, मतलब वो तो बिल्कुल नॉर्मल है उसके, शी इज नेगेटिव. और बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि उसको स्पॉन्टेनियस ऑनसेट और लेबर का इंतजार करेंगे अप टू टर्म. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम उसकी टाइटर्स क्यों कराएंगे, मतलब शी इज नेगेटिव. टीटर वो नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑल्दो पहली प्रेगनेंसी में अनलाइकली है, लेकिन अगर रिमोट केसेस स्मॉल परसेंटेज में फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं. अगर ओनली फॉर कैल, जो कैल हमारे पास एंटीबॉडी होती है उसके बारे में है कि मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन जो डी है, ई है, मतलब सर उसके तो कोई वो नहीं है. नहीं, मैं समझा नहीं आपको. नहीं, लेकिन साइलेंट हेमरेजेस भी हो जाती है ना डॉक्टर. हाँ, शी इज नेगेटिव.
She is negative, her माइनर titers are negative. माइनर प्लेसेंटल ब्लीड्स, तभी फीटल जो डीएनए है वो कहाँ से आ जाता है? वो इसी तरह प्लेसेंटा से रिलीज होकर आ जाता है। तो जो आजकल NIPT टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो लेकिन नहीं, ये किताब के हिसाब से सही है, मेरा नहीं, कि even in primary gravida when there are no antibodies you will check antibodies. सर इन दिस सिनेरियो में भी हम 4 वीकली ही करेंगे अगर नेगेटिव ही आता है, मतलब हाँ 4 वीकली टिल 28 वीक्स एंड देन हाँ, वो कहते जाइए 4 वीकली, और फिर उसको जैसा इन्होंने कहा कि 38 वीक पे डिलीवर करने की क्या जरूरत है जब नो एंटीबॉडीज है, तो आई एग्री विद कि उसको टर्म तक ले जाएं, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, जो कि अगर आप 38 वीक्स पे पोर बिशप के साथ इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं फॉर एनी ऑब्स्टेटिक रीजंस, तो रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन रहता है फेल्ड इंडक्शन के साथ। व्हाई टेक दैट रिस्क? इसलिए इनका कहना सदर का बिल्कुल ठीक है कि आप लेकिन सर हम टाइम डिलीवरी सर इसलिए कराते हैं ना कि एक टर्शियरी लेवल केयर के सेटअप में हो, ताकि बेबी की भी मॉनिटरिंग हो जाए और मदर की भी मॉनिटरिंग एंड तक होती रहे। अगर आप इस तरह से कहना चाहती है फिर कहिए कि अगर वो दूर रहती है अस्पताल में दाखिला इसलिए कि जरूरी है, या फिर मैं उसको जी सर, 38 पे क्योंकि सर हमने मैटरनल और फीटल दोनों इंटरेस्ट देखने हैं ना इसमें। अगर हम 38 पे इंडक्शन कराते हैं तो टाइम इंडक्शन आपने इंडक्शन की जस्टिफिकेशन दी है। जी सर, ये RH नहीं है, आपने कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, सर्जिकल हो, जो दूर रहती है, गांव में रहती है, उसको हम कहते हैं कि आप अस्पताल में आके डिलीवर करना, ये ना हो घर पे लेबर पेन शुरू वही डिलीवर हो जाए। इसलिए हम उसके लिए फॉर सोशल रीजंस हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो प्राइमरी ग्रेविडा की स्ट्रेटेजी एक ये भी थी कि पहले ना मतलब अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो फिर हमने ना रिपीट करना है एंटीबॉडी टाइटर एट 28 वीक्स, यानी हम 4 वीकली नहीं करा रहे, सिर्फ 28 वीक्स पे करा रहे हैं, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम उसे प्रोफाइलैक्टिकली इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये ना प्रोफाइलैक्टिक इंडक्शन आपने खामखा इंजेक्शन आप सब मिलके अपने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो। यहाँ पे आज डिस्कशन करनी है प्राइमरी ग्रेविडा RH नेगेटिव नो एंटीबॉडीज, बस उसमें जो ये कहते हैं फॉर सोशल रीजन इंडक्शन में करूंगी, मुझे कबूल है, तभी मैंने मुनज़्ज़ा को नहीं चेक किया, फिर आपने इंटरजेक्ट किया कि नहीं जी इंडक्शन एट 38 वीक्स का फेलियर रेट बड़ा हाई है, तो 5 to 10% वो अननेसेसरी सेक्शन हो जाएगा, उसको टर्म तक लेके जाओ। मैं उसको भी एग्री कर लिया, दोनों एग्रीएबल है प्रोवाइडेड यू गिव द रीजंस आर्गुमेंट। यहाँ आर्गुमेंट ये है कि अगर इंडक्शन फॉर नॉट मेडिकल रीजंस, फॉर सोशल रीजन, कि वो दूर रहती है, अस्पताल में डिलीवरी जरूरी है और वगैरह वगैरह, इसलिए उसको 38 वीक्स पे कर लो। और अगर मैंने कहा प्रोवाइडेड देयर नो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी मैं तो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट का इंतजार करूंगी, प्रोवाइडेड शी कैन कम टू द हॉस्पिटल एट द राइट टाइम, वो भी ठीक है, दोनों ठीक। चलें, अब कोई और है वॉलंटियर के? मैं मुनज़्ज़ा के साथ ही चलूं सेकंड हिस्ट्री। सर इसके बारे में थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। अगर हस्बैंड इसका नेगेटिव होगा तो फिर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा बिल्कुल ठीक है, तो अगर फिर हम हस्बैंड जीनोटाइप चेक पॉजिटिव है करेंगे। फिर भी कुछ नहीं करेंगे, सिवाय एंटीबॉडी का टेस्ट करते चले जाएंगे। और सर फिर जीनोटाइप चेक करेंगे ना, अगर हस्बैंड पॉजिटिव है, अगर होमोजाइगस होगा तो एक मिनट मोहतरमा, एंटीबॉडी तो चेक करनी ही करनी है, ये सर वो तो करनी है, लेकिन मैं अगर जीनोटाइप की बात पॉजिटिव कर रही हूँ ना। फिर एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, और क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ गया, नेगेटिव में भी हो सकता है, तो बढ़ गया, तो इसलिए उसका वो फिर जो भी है डिलीवरी करेंगे और कॉर्ड ब्लड के टेस्ट करेंगे, ये बेसिक्स है। सर यहाँ पे कोई कह रहा है कि कॉर्ड ब्लड अब सेव नहीं करते न्यू गाइडलाइन से, तो अगर उनको पता है तो वो जरा हमें बता दें। किसी ने यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि सेव करना है। क्या लिखा है जी, मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं सर, कॉर्ड ब्लड सेव करना होता है, मतलब जो भी न्यूबॉर्न है उसका हाँ, मुझे तो यही पता है कि करना होता है।
तो चलें, अगर कोई और वॉलंटियर करता है तो सेकंड केस के लिए, अगर नहीं करता, डॉक्टर मारिया। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर मारिया। मारिया, चलो मारिया। मुनज़्ज़ा थैंक यू। अब ये दूसरा केस ले लेते हैं। मारिया, आप कहाँ से बोल रही हो? रफ्ताबाद। आपने पहले भी पेश किया हुआ केस? यस सर। अच्छी बात। चलो, अब यही पेशेंट एज 24, gravida 2, para 1, previous normal delivery and no problem, comes to you for booking. She is on checking, she is RH negative. Yes. सर प्लीज रिपीट कर दें थोड़ा सा सिनेरियो। मैं बोल देता हूँ। Patient 24 years old, gravida 2, para 1, previous normal delivery, healthy baby. Now, routine investigation पे she is RH negative. Yes sir. Should I start? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। First of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction, in which I will ask her name and name and okay, and duration of marriage, and then I will ask the age of the last born baby and her last menstrual period, whether it was whether she's sure of her dates, and whether her cycles are regular. Then I will sir, can you please tell me about the gestational age? Let's say कि वही 24 weeks हो। 24 weeks. Okay, sir. I will ask the patient whether she had she conceived spontaneously or through ovulation induction, and how her pregnancy was confirmed, and then एक मिनट मारिया, ये आज के प्रॉब्लम में रेलेवेंट है कि प्रेगनेंसी हुई कैसे? Okay, sir. I'll skip that. क्यों नई बातें आप डालते हो? मैं आप लोगों को यही बार-बार समझाता हूँ, बाबा नई प्रॉब्लम क्यों इंट्रोड्यूस करते हो? यहाँ पे उसने सुन लिया एग्जामिनर ने, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, आपको ART की तरफ लेगी, आपका वक्त जाया। आपने तो इस पेशेंट को डिलीवर करना है 7 मिनट के अंदर अंदर। Okay, sir. तो मैं she can say whether it was spontaneous pregnancy or calculate करूंगी expected date of delivery. Yes, sir. I will ask whether any blood tests carried out, whether the blood tests from the start were normal, and I will then ask that she is the information provided is that she's RH negative. I will ask about the husband blood group, whether it's RH negative or positive, and then I will ask whether she has taken her hematinics and folic acid during her pregnancy. And फिर देखे ना, जब आपने ये RH नेगेटिव है, आपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पूछ लिया, आगे बोलो ना कि I'd like to know whether he is homozygous or heterozygous. Okay, sir. Sir, I want to know the husband blood group first with RH factor. And then I want to know whether homozygous or heterozygous. Good. Okay. And okay, then I will ask whether her blood and urinary investigations have been done, that have been normal. Her anomaly scan has been done. No. मैं कितनी दफा आपको सबको बार-बार कह चुका हूँ, क्या करो? पेशेंट की हिस्ट्री कंप्लीट करो, फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करो, फिर इन्वेस्टिगेशन। ये 100 दफा तो मैं कह चुका हूँ। Yes sir. इस पेशेंट की आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी? No sir, अभी तो हिस्ट्री में पेशेंट से पूछ रही हूँ। कुछ भी फिर पेशेंट से ही हिस्ट्री लेते हैं ना बाबा। Yes sir. आप सीधी चल पड़ी हैं उधर इन्वेस्टिगेशन की तरफ। क्या ये जो 2-3 लफ्ज बोले, ये कंप्लीट हिस्ट्री है उसकी, जितनी तुम्हें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए? No sir, अभी मैं से हिस्ट्री ऑफ एनी ब्लीडिंग और हमने उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं पूछी, हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछी, फिर उसको फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, फिर उसका
फिर आते हैं हम टेस्टों पे। अभी अभी मैं ये मुनज़ा को बात 3 दफा दोहराया। आई एम सॉरी गर्ल्स के आई गेट स्टक, लेकिन जब तक आपका ये ओरिएंटेशन सही नहीं होता आप इम्तिहान में पास नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना कोई चीज हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट थी वो आपने पूछी नहीं, बाद में एग्जामिनर कहता उसको ये भी था, डायबिटीज भी थी, आपने पूछा था, आपने नहीं पूछा, बस गल खत्म हो गई, उसने आपका रिजल्ट बता दिया। फिर ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन उसका ब्लड प्रेशर था 140/90, आपने चेक किया था? नहीं किया। बस कितनी छोटी छोटी बातों पे फेल होते हैं लोग। तो आपने सब, आप सुनिए प्लीज सुनिए, कुछ भी हो टॉक स्टेशन पे आप जाएंगे, पहले हिस्ट्री के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, फिर फिजिकल के एग्जामिनेशन के रेलेवेंट बोलेंगे, फिर टेस्टों पे आएंगे, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हस्बैंड का सीमेंट टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, RH ग्रुप बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी जगह है। डोंट जंप एट इट, वंस यू जंप एट इट फिर हम उधर ही चलते जाएंगे, उसकी जीनोटाइपिंग, वो उसके फिर वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उधर हम गुम हो जाएंगे, उधर मरीज की मैनेजमेंट नहीं होगी। आपने तो टॉक स्टेशन पे मरीज को कंप्लीट करके घर भेजना है बस उस 7-8 मिनट में। तभी मैं कहता हूँ बार बार कोई नई प्रॉब्लम ना लाओ कि इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन से प्रेगनेंसी हुई। वो एक नया सवाल आ गया, एग्जामिनर पूछता है इंडक्शन कैसे कैसे करते हैं जी, क्लोमिफेन कैसे देते हैं, ये कैसे, मरीज होती रह गया, क्लोमिफेन डिस्कस होती रह गई, आप पास ही नहीं, आपका वक्त ज़ाया हो गया। सर सो कम बैक, कम बैक। सर ये जो आप ये वाला जो सिनेरियो है, अभी ग्रेविडा 2 है, तो इसमें तो बस बायोडेटा में मतलब हमें ये पूछना चाहिए कि इसका जो पिछला बेबी था, सो मतलब एक पे के कितने बेबीज थे वो उसके, इम्पोर्टेंट था। मैंने पहला एक ठीक कहा आपने, मैंने सर वो पहला हम उधर ही क्यों आप ना ये पूछे, तो मुझे क्योंकि कैसे डिलीवर हुई थी सर वो भी बायोडेटा में पूछा। मैनेजमेंट में, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो सेक्शन हुआ तो क्यों हुआ, वजाइनल डिलीवरी हुई तो नॉर्मल हुई, कैसे हुई, ये सारी इम्पोर्टेंट है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, PPH तो नहीं। हिस्ट्री ऑफ NTD, और फिर अभी तक वो 24 वीक्स तक में ये पूछे कि आपने जो मोस्ट विजिट्स किए उसके इम्पोर्टेंट, टाइटल्स हुए, तो ये सारी टाइटल्स किस तरह है? जो भी बोल रही हैं, आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन साइमा, साइमा लेफ्ट, डॉक्टर हाल है क्या नाम? यस सर। सर तो इसमें तो इस तरह पूछना चाहिए दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक सर मैं बताऊं ये लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट माय, आई एम सॉरी, इनको बोलने दो, कौन बोल रही हैं? सर डॉक्टर हाला। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू द पेशेंट एंड आपके साथ तो मैंने डिस्कस करना था, फिर उस दिन कुछ हो गया। चलो हाला, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। शुरू से सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ग्रीट द पेशेंट, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे। पेशेंट एज 24, gravida 2 para 1, comes to you at 24 weeks of gestation, and routine investigation show that she is RH negative. How will you manage? Sir, first of all, I will greet the patient and tell her regarding myself that I am PG4 here and I'm here to manage her case. She is gravida 2. I will ask her first of all that how long she's married and how many kids she had and how many times she got pregnant. She have one baby, but I will ask her regarding other times she got pregnant, if it ended in any miscarriage or ectopic pregnancy. Then I will ask her regarding that baby that it was delivered. जब मैंने बोला ग्रेविडा 2 पैरा 1 एक्टोपिक कितने आ गई? यस सर, ओके सर, इस पे तो मैं नहीं पूछना। एक्टोपिक कहाँ से आ गई इसमें? यस सर। तो आई मीन आप हिस्ट्री सुनो, उसके मुताबिक सवाल पूछो। ओके सर। So I will ask her regarding that she had any C-section or was this a normal vaginal delivery, and did she got any NTD in that pregnancy? After that, I will ask her regarding this pregnancy that she when she conceived, so she did have any बेबी का ब्लड ग्रुप पूछ दिया आपने? No sir.
NTD पूछा है. NTD is different. NTD is different. Yes. डिलीवरी के बाद RH नेगेटिव को NTD दे देते हैं, irrespective बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है. Yes, sir. Sir, I will ask her regarding any history of medical and sir, I ask her regarding Hala, relax. Because I didn't give you chance last time, so I'll give you full chance this time. Relax. हम फिर चलते हैं. I am sorry. Because आप समझते होंगे ये RH तो हमने कवर ही ना किया, कुछ भी ना किया, ये दो लड़कियों की हिस्ट्री में ही फंस गए. लेकिन इनसे सबक सीखो आप. वो RH तो आप किताब से पढ़ लोगे. इस तरह से आपको फोकस करने के लिए कोई नहीं किताब बताती. जी सर, इसमें कभी किसी ने बताया, अब बहुत अच्छा बता रहे. जी चले फिर बोलते हैं. हाला. Yes, sir. So first of all, remain focused on the patient and the problem. दो बार. Here is a patient who is 24-year-old, gravida 2, para 1, comes to you at 24 weeks of gestation for booking, and she is RH negative. Yes, sir. First of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction. I will ask her regarding her previous pregnancy, as she is gravida 2. So I'll ask her that where her baby was delivered. Was it a normal vaginal delivery or cesarean section? If she knows the blood group of the baby, and did she receive any NT-D after delivery of the baby or not? Then I will confer her last menstrual period and ask her regarding her cycle. Was it regular? And I will calculate the estimated delivery date of the baby. Then I will ask her regarding this pregnancy, that does she had any problem in this pregnancy so far. I will ask her regarding any transfusion in this pregnancy, any invasive any complication during pregnancy, especially any bleeding. Especially any bleeding in first trimester. And then I will ask her regarding any transfusion in this pregnancy or apart from in this pregnancy, or any invasive test done. Yes, sir. And then I will take her medical history. I will, sir, इसमें तो बस पर medical history page. वो सिर्फ medical surgical history पर काफी है. चलो आगे चलो. सर मैं एक बात को कंफर्म जरा करूं सर, अब यहाँ तक हमने सिर्फ उसकी प्रीवियस बेबी की मतलब ब्लड ग्रुप और NTD, फिर ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, फिर सिजेरियन था या NVDT और एनी ट्रांसफ्यूजन. ये रूटीन हिस्ट्री के बाद पास्ट ऑफ स्टैटिकल हिस्ट्री अगर इस ऑर्डर में बोलती हैं तो अब बोलिए, सारा कुछ बोलिए. So then I will take her previous surgical history, and if she is if she is getting treatment for any medical disorder, and then I will ask her regarding any allergy, and if she had any transfusion in the back, so any allergic reaction was associated with it. I will also ask her regarding her socioeconomic history, and if she is well supported at home, and then I will counsel her regarding that. I will just examine you, do some certain investigations on you, and then we will manage your pregnancy. And on examination, I will look for pallor and jaundice of my patient. I'll do general physical examination and chest and abdominal examination. Abdomen पे कोई खास बात बोलनी है तो बोलो. बाकी सिर्फ बोलना है कि general physical abdomen. Yes, sir. Sir, I will do general physical examination, chest auscultation, breast examination, और pre-abdominal examination. I will look for fundal height of the baby. Sir, अगर hydrops हो तो वो ज़्यादा हो गया होगा ना? And I will also. ये can बोलने की बस. I'll correlate height of fundus with gestation. Yes, sir. And I will auscultate the hearts of the fetal hearts with sonicate, and then I will proceed to investigations. After baseline investigation, I need blood group of the husband of the patient, and also if previous baby blood group is available. And then I will need
the dating scan, the anomaly scan, and a recent scan of my patient. नहीं, यहाँ पे चूंकि वो 24 वीक्स पे हो गई, नॉर्मली स्कैन का वक्त गुजर गया है। वैसे बोले, if she has anomaly scan of anomaly sir. का लफ्ज बोला तो फिर वो एग्जामिनर ले जाएगा आपको 20 वीक्स पे। तो I'll ask for scan of the। ठीक है सर। सर तो प्रीवियस स्कैन्स नाम होंगे इसमें, प्रीवियस स्कैन। तो वो जब आप ये बोलेंगे फिर कहेंगे कि I like to know her previous investigation from the record. Yes sir. And sir, then on specific investigation, I need antibody titers of my patient, and if she have done previously, so I also need that previous titer as well. Sir, then I will compare in management. First of all, I will counsel my patient regarding the diagnosis that she have a high risk pregnancy, she is Irish negative, and if her baby was previously Irish positive. So if antibodies are present, it is high risk pregnancy. If no antibodies, then I'll reassure. I will reassure. If antibodies are present, then it's a high risk pregnancy, and if no antibodies are present, then I will reassure my patient as she is 24 weeks. So I will counsel her that now I will put her on 2 weekly antenatal visits. I will do her antibody titer repeated on 28 weeks, and if it is normal, then too I will give her anti-D prophylaxis, which I will repeat at 34 weeks. I will take her pregnancy to term by doing her frequent antibody titers, that is 2 weekly. I will monitor her antibody titers. If there is no increase in the antibody titers, I will take her to term and deliver her in our consultant-led unit at our tertiary care system. And when the baby will be delivered, so it will be handed over to the neonatologist. His blood group will be done, and if it is negative, then I will reassure my patient. But if the blood group of the baby is positive, I will give my patient again anti-D, and I will counsel her regarding the management of further pregnancy. I'm glad कि I'm sure कि नज़ा भी करती तो इसी तरह ही करती कि इस आधे घंटे में मैं at least I feel satisfied कि आप लोगों को मैंने फोकस होना सिखा दिया। पेशेंट पे फोकस रहिए ऐसे। जी अब बोलिए सर। जस्ट एक बात पूछनी है, ये टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ना सर, वो जरा एक दफा उसका बता दें, कंफर्म कर दें कि हमने स्पॉन्टेनियस लेके जाना है या इंड्यूस करना है। जी नहीं, if there are no antibodies, there is no obstetrical indication to induction of labor other than social. You can wait for spontaneous onset till term, और उसके बाद नहीं होती तो फिर वो जो obstetrical indication है बिशप स्कोर करके फिर इंडक्शन, उस तरह की बात। If she is RH negative, no antibodies, then there is no indication, obstetrical indication to do induction of labor at any stage. Wait as you do in a normal pregnancy. और normal pregnancy में induction होती है term plus हो जाए या कोई और, ये इसी तरह इसको करेंगे। और रह गया कि इस पेशेंट में अगर एंटीबॉडीज बन जाए, वो डिस्कस करने की बात है कि अगर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई, सेकंड ग्रेविडा 2 में बन सकती, बनना शुरू हो गई, फिर हम उसका टीटर मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि हाउ रैपिडली एंटीबॉडीज आर increasing, particularly the saline antibody. So उसके मुताबिक if the antibodies are increasing, then according to the titer of the antibodies, we'll do in delivery earlier than 38 weeks जब भी आपको मुनासिब। अगर severely affected, एक मिनट, अगर severely affected baby है very high, then we will consider intrauterine transfusion. सर तो जब हम एंटीबॉडी टाइटर्स मॉनिटर कर रहे होंगे तो सर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर का नहीं बोलना बीच में? हाँ, फिर उसमें आ जाता है, middle cerebral artery will tell you how severely anemic the baby is, या waveform, तो uterine artery की और umbilical cord, तो वो फिर डॉपलर उसमें आ जाता है। तो लेकिन मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी, मॉनिटरिंग ऑफ मदर,
then accordingly delivery earlier than 38 weeks, depending upon the titer. If the titer is very high, baby is affected, then intrauterine transfusion every 2 weeks. Generally, उसके साथ 34 weeks, 32 weeks पे deliver कर लेते हैं, because it's easier to do exchange transfusion outside than intrauterine transfusion. अच्छा, I'm sorry कि हम सिर्फ यही कर चुके. मैं कल रात जा रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर. I'll be back on 1st of November. तो आप लोगों का इम्तिहान है, I'm told first week of November. ऐसा करते हैं. इमरान सुन रहे हो तुम? जी सर. कितनी लड़कियां हैं लाइन पे? सर 108. अगर आप में से 80 अभी इमरान को कहेंगी हाँ, तो फिर मैं कल सुबह आपकी क्लास लूंगा इसी वक्त 9:30 9 बजे लगते 9 से 10. अगर 80 से कम ने कहा तो फिर मैं कल नहीं लूंगा क्लास, क्योंकि आप लोगों ने कहा था अनश्योर ऑफ डेट्स का क्लास वो आज हो नहीं सकी. कल फिर मैं अनश्योर ऑफ डेट्स. आप सब इमरान को यस करो. If 80 of you say yes, I'll take tomorrow 9 to 10 class. I unsure of dates. और फिर इमरान आपको कंफर्म भी कर देगा कि कल क्लास होगी कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ यू. तो और फिर अगर कल को फिर अभी 5 मिनट थे को बात करनी होती तो मैं कल कर लूंगा. अभी मेरी मीटिंग भी है एक 11:15 बजे. सर अभी सबने यस कर दिया. कितने? सबने यस कर दिया सर. चलो ऑल ऑफ यू. इमरान से आप सबने यस किया है. यू आर मोर देन 100. तो मैं कल सुबह 9 से 10 क्लास लूंगा. इज इट ओके? जी Yes, sir. Thank you, sir. Yes, topic will be unsure of dates. Yes, sir. Sir, एक question है. Sir, please give me 1 minute. ठीक, पूछना 2-3 मिनट है. Yes, sir. सर अगर ये जो हम एंटीबॉडी टाइटर्स को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इट क्रॉसेस 1:16 एट एनी गैस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 18 वीक्स पे, मैं सिनेरियो का पूछ रही हूँ, तो फिर हम उसको एमसीए करेंगे. ठीक है, एमसीए अगर क्रॉस करेगा 1.5 MOM, then I will refer my patient to fetal-maternal unit and they will do the intraperitoneal transfusion 18 weeks पे. बिल्कुल. intraperitoneal transfusion के बारे में इसमें लफ्ज ऐड कर दीजिए. I will seek help of perinatologist. सही है सर. ये Perinatologist. मल्टी सर और अगर ये जो तो ये कह के मल्टी डिसिप्लिनरी बात हो गई तो एग्जामिनर विल नॉट आस्क यू कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है, अम्बिलिकल और कॉर्ड के कौन से हिस्से में आप ब्लड दे जाते हैं. वो फिर खामखा आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि आप जी. सर जो इंट्रापेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन है वो हम कौन से वीक से पहले करते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में तो हम लोग पेरिटोनियल ना बोल ना. इंट्रापेरिटोनियल पुरानी बात हो गई. वो मैंने भी किया हुआ है. इंट्रापेरिटोनियल ये था कि आप बेबी की पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड इंजेक्ट कर दो. तो वो अब बात पुरानी होगी, वो नहीं होता. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन इट इज कैरिड आउट कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ प्लेसेंटा पे अटैच्ड है, जहाँ प्लेसेंटा पे अटैच्ड है, वहाँ अम्बिलिकल आर्टरी में नीडल आते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और उसमें फिर 10 से 15 सीसी फिर ऐसा 25 सीसी ब्लड इंजेक्ट करते हैं. ज्यादा नहीं कर सकते. बेबी विल डाई ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. तो आप 15 से 25 सीसी ब्लड इंजेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिपीटेड एवरी 2 वीक्स. और फिर उसी में से ब्लड शक आउट करके आप बेबी की हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग यू कैन चेक. इंट्रा पेरिटोनियल ना बोले, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड done by perinatologist, ultrasound guided.
सर ऐसा नहीं कि इनिशियली हम मोर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं ना, ये तकरीबन चूंकि ये डिफिकल्ट प्रोसीजर 3, 4, 5 दफा से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए बेबी को 33, 34 वीक्स पे डिलीवर कर लिया जाता है। अब बाहर के मुल्कों में तो पेरीनेटल केयर, इंटेंसिव न्यूनेटल केयर अच्छी है, तो वो तो 22 वीक्स पे कल परसों मुझे कोई हमारे दोस्त हैं हॉलिडे पे गए हुए थे इटली, वाइफ 16 वीक्स प्रेग्नेंट, उसको रप्चर मेम्ब्रेन हो गया, वो अस्पताल चले गए। वो कहें जी हम तो अस्पताल में दाखिल रखेंगे जब तक फीटल हार्ट है, और अगर ये 18-20 वीक्स तक चली गई फिर हम लाइव डिलीवर करेंगे। वो मैं वहां पे प्राइवेट पेशेंट बन के दाखिल होना, पाकिस्तानी रुपया वैसे ही डाउन है। मैं क्या तू तो छुट्टी लाए थे पाकिस्तान आ गया, फिर वो किसी और अस्पताल में गए, वहीं पे दे एग्रीड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और वरना वो तो 16 वीक्स को वायबल समझते हैं। उनकी बात छोड़ो, लेकिन सर एक क्वेश्चन ये चले सर एक क्वेश्चन है सर। बस ये सर सवाल इसका टीटर नेगेटिव है। हाँ जी सर पेशेंट का टीटर नेगेटिव है, एंटी-डी प्रोफाइलेक्टिकली देंगे 34 पे? वो तो देना ही देना, वो तो देना ही देना। RH नेगेटिव को चाहे बेबी नेगेटिव ही है, आपको पता है। तो क्योंकि बहुत काम है कि बेबी का ब्लड ग्रुप आपको पहले पता हो NIPT से या किसी और तरीके से। तो जनरली स्पीकिंग वो 28 वीक्स पे प्रोफाइल एक्सेस पे 36 वीक्स पे आपने बोलना है। सर मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर हमने 1/16 के बाद हमने स्टार्ट करना है उसका करना। If the baby, you think baby is affected, antibodies are going up, फिर आपने मेरा ख्याल किताब में 20 वीक्स लिखा हुआ। सर 4 से जब 4 से ज्यादा हो जाएगा ना एंटीबॉडी टाइटर, फिर हमने शुरू कर देना है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वीकली। बस ठीक। सर ओके कल आंसर ऑफ डेट्स सर मैं प्रेजेंट करूं कल? जी सर मैं प्रेजेंट कर दूं कल आंसर ऑफ डेट्स? जी बोलिए, कौन बोल रही? सर मैं मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा कहाँ से बोल रही? सर लेडी एचएसएन। आपने पहले भी किया हुआ? चलो ठीक सर है, आज अभी किया आपके साथ। चलो कल और कोई है वॉलंटियर? मेरा आज वो इंटरप्ट हो गया था डॉक्टर मारिया, तो मैं नहीं प्रेजेंट कर सकी, तो नेक्स्ट। चलो मुनज़्ज़ा एंड मारिया दोनों। थैंक यू सर। आ जाना कल, हाँ करके ये ना हो भाग। जी सर, जी सर ओके। सर अगर एंटीबॉडीज के नेगेटिव आ जाते हैं पेशेंट के, तो उसके बाद हम लोग इसको किस तरह से फॉलो करेंगे? दोबारा से हम लोगों को एंटीबॉडी टाइटर्स कराने की जरूरत है? देखना एंटीबॉडी आप रिपीटेडली करेंगे, अगर आज नेगेटिव है कल को पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी प्लेसेंटल लीक हो सकती है। तो सर फिर कितना फ्रीक्वेंटली हम उसको रिपीट कराएंगे? वो 28 वीक्स पे, फिर जब एंटीबॉडी बन जाए आ जाए, अगर नहीं है फिर 28, 36, अगर बन गई है फिर एवरी 2 वीक्स। ठीक है। और सर अगर जो है वो डिलीवरी के बाद भी हम पेशेंट को देते हैं एंटीबॉडी टाइट वो देते हैं एंटी-डी देते हैं, तो तब भी हम लोगों को क्लियर टेस्ट कराना है इस पेशेंट का? ना कोई नहीं, जो बेबी के कराने वो जो कॉर्ड ब्लड पे चार्ट है। ठीक है। और बेबी RH पॉजिटिव है तो एंटी-डी लगेगा। ठीक है सर। ओके, खुदा हाफिज। फिर बाकी के कोई सवाल है तो कल पूछ। थैंक यू। थैंक यू सर।